السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حیدرآباد نیتی آیوگ کے اجلاس کا بائیکاٹ، مودی کی بھجن منڈلی، ضروری اشیاء اور دیگر پر لگائے ٹیکس برخاست کریں، کے سی آر کی پریس کانفرنس۔ 15 اگست سے نئے آسرا وظائف کی اجرائی، ڈائلسس کے مریضوں کو بھی وظائف نئے کارڈز جاری کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ مودی کے اصل شاگرد کے سی آر، نیتی آیوگ کا بائیکاٹ، خفیہ معاہدہ، نقصانات سے متعلق نمائندگی ضروری، ریونت ریڈی کا رد عمل۔ اور ایبٹس کے ایک مال میں حقہ پارلر پر پولیس کا دھاوا، 2 افراد گرفتار، حقہ کا سامان اور نقد رقم ضبط۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹ، ماون پرائم مہدی پٹنم، ابرار ماون پریسٹیج آصف نگر، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے طلب کردہ نیتی آیوگ اجلاس کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نیتی آیوگ مودی کی بھجن منڈلی بن چکی ہے۔ نیتی آیوگ کا ایجنڈا کون تیار کر رہا ہے معلوم نہیں۔ نیتی آیوگ سے ملک برباد ہو چکا ہے، ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پلاننگ کمیشن میں اتنی چھوٹ تھی کہ ریاستوں کو درکار فنڈز حاصل کرنے کے لیے پوری سہولت تھی، لیکن NDA حکومت میں نیتی آیوگ کی سفارشات کو بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ نیتی آیوگ کا کیوں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق تفصیلی طور پر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو مکتوب روانہ کر چکے ہیں۔ نیتی آیوگ میں ملک کے موجودہ حالات اور پالیسی پر کوئی بات نہیں ہوتی، صرف 4 منٹ بولنے کے لیے 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہاں 4 منٹ بولنا بے فیض ہے، اس لیے نیتی آیوگ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے تاکہ ملک میں یہ بحث ہو کہ بائیکاٹ کیوں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیس کے نام پر ریاستوں کے ٹیکس کو لوٹا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال تلنگانہ حکومت نے 1,90,000 کروڑ روپے خرچ کیے، جس میں سے مرکزی حکومت اسپانسر اسکیم کے تحت صرف 5,000 کروڑ روپے دی ہے۔ 15ویں فائنانس کمیشن نے تلنگانہ کو 6,000 کروڑ روپے دینے کی سفارش کی تھی، لیکن مرکزی حکومت نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ مرکزی حکومت GST اور IGST کے 3,000 کروڑ روپے کے بقایا جات باقی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ FIBM کے نام پر جو کٹوتی کی جا رہی ہے اس کو برخاست کریں۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ضروری اشیاء پر لگائے گئے GST کو برخاست کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ کیا یہی وفاقی پالیسی ہے، کیا یہی میک ان انڈیا ہے جو ملک کو بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ملک میں آمرانہ حکومت چل رہی ہے۔ انہوں نے مودی کو انتباہ دیا کہ وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لائے اور طریقہ کار بدلے، ورنہ تحریک کا سامنا کرنا ہوگا۔ Under serious protest to Government of India, I am boycotting tomorrow's Niti Aayog meeting, which is supposed to be held in Delhi, because the policy spelled out in the first Niti Aayog meeting, that was the cooperative federalism and the Team India spirit, is totally lost by the Government of India, by the Niti Aayog.
practically it's a literal truthful dictatorism. It is imposing of schemes which are undesirable to the states. The imposition of GST tax on various issues like handloom weaving, milk, crematoriums have to be withdrawn. The poor BD workers are suffering because the BD industry is almost under closure. They are losing their employment. Governments have a responsibility to show the alternative employment to them. In spite of that, you are increasing GST by 28% on BD industry, by which the poor BD industry will suffer and the poor BD workers will have no way to live. Of course, it is a painful job to do, but they are winning their bread out of the BD making because they are so poor. The farmers are unhappy. Peoples of all walks are confused. The government of India is not able to control the price rise, which is skyrocketing. The inflation is touching the high. The unemployment rate has gone up to the percentage of 8.1. This was not desired out of the result of formation of Niti Aayog. The National Institute for Transforming India has resulted drastically. It is painful. I am very painfully appealing. It was not my intention to make it a political issue, but under compulsion, having no way, I made various suggestions during so many meetings of Niti Aayog. This is undesirable, unwanted behavior of the government of India. Henceforth, I humbly request once again the Honorable Prime Minister of India, please change your attitude. Please change the policies. Please lift the GST on handlooms, milk productions, and also on various poor people's issues. For these valid reasons, painfully, I am clearly declaring to the nation that I am boycotting tomorrow's Niti Aayog meeting. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 15 अगस्त से नए आसरा वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत में जुमला 36 लाख अफराद को 2016 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। इसमें 10 लाख अफराद को शामिल किया जा रहा है। जुमला 46 लाख अफराद को आसरा वज़ाइफ के नए कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि डायलिसिस मरीजों को आसरा वज़ाइफ देने का फैसला लिया गया है। करीब 12,000 अफराद को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की रिहाई की रिवायत है, इसको नज़र में रखते हुए 75 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इन्होंने बताया कि यतीम बच्चों को रियासत के बच्चे तस्वुर किया जाएगा, उनकी तालीम व तरबियत रियासत की जिम्मेदारी होगी। इन्होंने बताया कि यतीम खानों को दिए जाने वाले ग्रांट्स में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुफ्त स्कीमात को ख़त्म करने की बात कही तो गरीब आवाम और लाचार अफराद की मदद करना मुफ्त है, तो मुफ्त में NPA के नाम पर 12,000 करोड़ रुपए क्यों माफ़ किए गए। वज़ीर आला ने कहा कि NPA में लाखों रुपए का कमीशन लेकर कर्ज माफ़ किया गया है। इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मुल्क में NPA में मौजूद हुकूमत में 20 गुना इजाफा हुआ है। ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంలో వాళ్ళకు కొంత సంతోషం కలిగిస్తాం। ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చ చేస్తాం। ఈ పెన్షన్లన్నీ ఈ సందర్భంలో పంచుతాం। 15 ఆగస్టు నుంచి స్టార్ట్ చేసాం। అవన్నీ కూడా పాత కార్డులు కూడా కొత్త కార్డులు ఇస్తున్నాం బార్ కొడుతూ। వెరసి 46 లక్షల కార్డులు పంపిణీ చేస్తారు। కొత్తవి 10 లక్షలు, పాతవి 36 లక్షలు। అన్నీ కూడా ఆయా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలు పోయి 10 రోజులు 15 రోజులు గ్రామాల సమావేశాలు పెట్టుకొని పంచుకుంటారు। అట్లానే డయాలసిస్ పేషెంట్లు వాళ్ళ బాధ పాపం హృదయ విదారకంగా ఉన్నది। ఎవరు ఇయ్యరు ఇండియాలో, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు। బోధకాలు బాధితులు ఉంటే వాళ్ళకి మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నాం। ఇక్కడ మన పాలేరు ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ ఉంటారు, ఖమ్మం జిల్లాలో అన్ని చోట్ల ఉంటారు, కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటారు। వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పెన్షన్। ఒంటరి మహిళలకు ఈ దేశంలో ఎక్కడ పెన్షన్ ఇయ్యరు, ఒక్క తెలంగాణలోనే ఇస్తున్నాం। బీడీ కార్మికులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో, 16 రాష్ట్రాలలో ఉన్నారు।
ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు, ఒక్క తెలంగాణలో ఇస్తున్నాం. అట్లనే మొన్న ఈ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చెప్పిండ్రు, నాకు కలిసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిండ్రు, వాళ్ళకు కొంత ఆదుకునే ఎక్కడున్నదంటే వాళ్ళకు బస్ పాస్ ఇస్తున్నారు, ఆల్రెడీ ఫ్రీ డయాలసిస్ చేస్తున్నాం, డయాలసిస్ కేంద్రాలు పెంచినాం భారీగా. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం. దాదాపు 10-12 వేల మంది ఉన్నట్టు తెలియవచ్చింది. వాళ్ళకు పాపం ఎటు కాకుండా ఉన్నారు కాబట్టి, పనిచేసే పరిస్థితులు కాబట్టి డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసే సౌకర్యాలు కొనసాగిస్తూనే ఈ ఆసరా కార్డు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు నెలకు 2016 ఇవ్వాలనుకున్నాం. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का नीति आयोग के इजलास का बाइकॉट करना मोदी के सामने झुकने के मुमासिल है. मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि केसीआर को किसी भी सूरत में इस इजलास में शिरकत करनी होगी और तेलंगाना को हासिल होने वाले फंड्स प्रोजेक्ट्स के मामले में आवाज़ उठानी चाहिए. केसीआर का नीति आयोग के इजलास का बाइकॉट करना मुआफ़ी के काबिल नहीं. इन्होंने कहा कि केसीआर को दिल्ली आने के लिए कांग्रेस पार्टी स्पेशल फ्लाइट मुहैया कराएगी. केसीआर अब तक मोदी के शराकतदार थे, लेकिन अब कट्टर मुखालिफ बन चुके हैं. तेलंगाना को जो नुकसान हुआ था, मज़कूरा इजलास में रियासत के मफादात के बारे में सवाल किया जा सकता है. इन्होंने कहा कि मोदी और केसीआर के दरमियान खुफिया मुआहदे के तहत इजलास का बाइकॉट किया गया. मोदी के असल शागिर्द केसीआर हैं. सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए इख्तिलाफात का मुजाहरा किया जा रहा है. वज़ीर सनअत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना टेक्सटाइल व हैंडलूम शोबे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया. मरकजी वजीर पीयूष गोयल को लिखे गए एक ख़त में इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को इस शोबे में दिए जाने वाले फ़ंड से महरूम किया जा रहा है. इस शोबे में ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार हासिल होता है, लेकिन मरकज़ उनके लिए कोई फलाही इक़दामात नहीं कर रही. इन्होंने टेक्सटाइल पर जीएसटी की शरह कम करने, हैंडलूम पर आयद तमाम टैक्स बशमूल जीएसटी को बर्खास्त करने का, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए फ़ंड फ्राहम करने, हैदराबाद में हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल और नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करने के अलावा दीगर मुतालबात अपने मकतूब में लिखे हैं. मुल्क की आज़ादी के डायमंड जुबली तकारीब का 8 अगस्त से आगाज़ होगा. HICC में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेंगे. इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और मुतल्लिका ओहदेदारों ने HICC में किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया. HICC में मुनक़्क़िदा तकरीब में काबिनी वज़रा, अरकान मुक़र्रना, अरकान पार्लिमान और दीगर अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे. इस प्रोग्राम में कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद होगा. चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वज़ीर आला का भी खिताब होगा. रियासत भर से आने वाले मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों के लिए बसेस का इंतज़ाम किया जाएगा. कौमी लोक अदालत हफ्ता 13 अगस्त को तमाम अदालतों में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें तमाम सिविल केसेस और कंपाउंड एबल क्रिमिनल केसेस फरीकों की मौजूदगी में हल किए जाएंगे. तेलंगाना में हाई कोर्ट से लेकर रियासत की तमाम अदालतों में इस दिन लोक अदालत मुनक़्क़िद होगी. तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर, सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज S गोवर्धन रेड्डी के मुताबिक लोक अदालत में तमाम ज़ेर इल्तिवा मुकदमात या तस्फिया तलब केसेस को हल किया जाएगा. ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का अगर लोक अदालत में तस्फिया हो जाए तो अदालत की वसूल करदा फीस फरीक को वापस कर दी जाएगी. लोक अदालत में जिन मुकदमात व मामलात की यकसोई की जाती है, इसकी किसी भी अदालत से अपील नहीं की जा सकती. स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सरपरस्त आला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में तमाम अदालतों में लोक अदालत का नज़्म किया गया है. लोक अदालत के जरिए मुकदमात की यकसोई व हल के ख्वाहिशमंद अपने मुतल्लिका ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदर नशीन या सेक्रेटरी से राबिता कर सकते हैं या किसी करीबी अदालत से रुजू होकर अपने मुकदमात व तनाज़ात को हल करवाएं. ये खिदमात बिल्कुल मुफ्त होगी. वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने अक़लियती इक़ामती स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के नुमाया कामयाबी हासिल करने पर इनको सर्टिफिकेट्स और मेमेंटो तकसीम किए.
बंजारा हिल्स में वाक़ अक़लियती इक़ामती स्कूल्स सोसाइटी के दफ्तर में मुनक़्क़िदा तक़रीब में वज़ीर के ईश्वर ने कहा है कि गुर्बत की वजह से कोई तालीम से दूर ना हो। इस मकसद के तहत तमाम तबक़ात के लिए बच्चों को मियारी तालीम मुफ्त में देने का फैसला लिया गया। तेलंगाना में 500 सोसाइटी के तहत 985 इक़ामती स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। 6 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। के ईश्वर ने कहा है कि इक़ामती स्कूल्स में तालीम के साथ साथ खेलकूद और दीगर शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल करते हुए तुलबा नाम रोशन करते हैं। इन्होंने अमले की भी सताइश की। इस मौके पर अक़लियती उमूर के मुशीर ए.के. खान, एडिशनल सेक्रेटरी दिलावर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली ए अनिल ने कहा है कि डी शमन एक धोखेबाज और मौकापरस्त शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि चिरंजीवी के प्रजा राज्यम पार्टी में अहमियत देने के बावजूद टीआरएस में शामिल हो गए और केसीआर की मुकम्मल तायद करने के बावजूद टिकट ना देने की वजह से दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी ने श्रवण को कल कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का तर्जुमान बनाया। रेवंत रेड्डी के पीसीसी बनने के बाद भी उनका ओहदे को कम नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में खैरतबाद से टिकट भी दिया। इसके बावजूद बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं, इसका खुलासा करें। मुश्किल हालात में कांग्रेस पार्टी के साथ देने के बजाय वो फरार हो गए। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा है कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सदर हैं। उनके खिलाफ किसी भी तरह के रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में तमाम तबकात को अहमियत दी जाती है। श्रवण ने जल्दबाजी में पार्टी छोड़ी। एम रवि ने कहा है कि श्रवण समझ रहे हैं कि वो कौमी सतह पर बड़े कायद बनेंगे। सदर पीसीसी का रेड्डी तबके से ताल्लुक है, जबकि दीगर ओहदों पर दीगर तबकात को नुमाइंदगी दी गई है। तशहीरी कमेटी के सदर नशीन भी पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कहा है कि श्रवण ने पार्टी छोड़ दी है, ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर तनकीद ना करें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मजलिस के रुकने कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और शिया तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि यौम आशुरा के सिलसिले में पुलिस की तरफ से मौसर इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के ख़त्म होने तक पुलिस चौकस रहेगी। आज़ादारों को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात पेश ना आए, इसे यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला ने हफ्ते को अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मुकामी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा में लब्बैक या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी ने अपने खिताब में सैयदुश्शुहदा शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शुजाअत, सब्र, सकाफत, हिम्मत, तक़वा और पाकीज़गी बयान की और कहा कि वो अलंबरदार थे। उनका कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अमली झलकियां नजर आती हैं। इन्होंने कहा है कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो दिलों में जज्बे शहादत मौजिज़न होता है। जलसे में डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, मौलाना सैयद खिज़र पाशा कादरी चिश्ती, अलहाज सैयद अहमद कामरानी, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिकार, डॉक्टर मुफ्तिया आतिका तैयबा, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम के अलावा दूसरों ने शिरकत की। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से बताया गया है कि बाज़ इंतजामी वजूहात की बिना पर इतवार के रोज़ हैदराबाद में 34 MMTS ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। मनसूख की गई MMTS ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद और हैदराबाद लिंगमपल्ली के अलावा फलकनुमा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली फलकनुमा ट्रेनें शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर कागज नगर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर को फिर से कायम किया गया। मुकामी मजलिस के टाउन सदर अब्दुल मुबीन और पार्टी कारकुनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। बताया गया है कि 2017 में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर को ख़त्म कर दिया गया था,
जिससे मुकामी तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। सदर मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी पर कागज़नगर में वसुंधरा डिग्री कॉलेज में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर को कायम किया गया है। मुकामी औलिया तलबा की तरफ से भी सदर मजलिस बैरिस्टर वीसी से इजहार तशक्कुर किया गया। चारमीनार मंडल के तहत याकूतपुरा के शादी मुबारक स्कीम के 70 चेक तकसीम किए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 70,08,120 रुपए के चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने बताया कि चेक्स की मंजूरी के साथ ही उनकी तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, अब्दुस्सलाम शाहिद और वासिउद्दीन के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया है। याकूतपुरे के तहत चारमीनार मंडल में जो शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जुमला चेकों की तादाद 70 है और रकम 70,08,120 रुपये की लागत की है। ये तमाम मुस्तहक लोगों में जो दरख्वास्त गुजार थे उनमें तकसीम किए गए। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बिला ताखिर चेकों की तैयारी के बाद फौरी दरख्वास्त गुजार के हवाले चेक करने की हिदायत दी गई थी। चुनाचे आज ये तकसीम अमल में लाई गई। माबाकी और चेक यहाँ के बाकी चारमीनार मंडल के इंशाअल्लाह एक दो रोज में उसकी भी तकसीम अमल में लाएंगे और लोगों को फायदा पहुंचेगा। शुक्रिया। हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की यकसोई के लिए मुतल्लिका अहदेदारों के साथ रुकन असम्बली अहमद बलाला की इजलास जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में ज़ेरे इल्तवा और दूसरे मरम्मती कामों का वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ जायजा लिया। इजलास में मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी मसाइल व शिकायत का सख्त नोट लेते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जल्द यकसोई की हिदायत दी। इजलास में वाटर वर्क्स के CGM, DGM मैनेजर्स के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिनहाजुद्दीन, अब्दुस्सलाम शाहिद, नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स SM अबरार, सैफुद्दीन शफी और सरगर्म कारकुन मोहसिन पीर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर करदा चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अंबरपेट और सईदाबाद मंडल के 119 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। अंबरपेट मंडल के तहत सईदाबाद कॉलोनी, सपोटाबाग, LIC कॉलोनी, अमीन कॉलोनी, न्यू मलकपेट, गांधीनगर, ग्रीन लाइन कॉलोनी, मुसाराम बाग, अफजल नगर, सलीम नगर में 50,05,800 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। कमल नगर, पद्मा नगर, शंकर नगर, वाहिद नगर, कदीम मलकपेट, अकबर बाग, पलटन, काला डेरा, पापिया बस्ती के 69 दरख्वास्त गुजारों में 69,08,400 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। जहानुमा डिवीजन के कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा ने कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए ज़ेरे इल्तवा और नए कामों के बारे में बात की है। इन्होंने मीडिया को बताया कि कामों में एक बॉक्स ड्रेन की तामीर, VDC सड़क की तामीर के अलावा NP2 टाइप लाइन के काम शामिल हैं। लोकेश कुमार ने जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट को जहानुमा डिवीजन के ज़ेरे इल्तवा कामों को जल्द मुकम्मल करवाने की हिदायत दी। मुख्तदर बाबा ने बाद में अशोक सम्राट से भी मुलाकात करते हुए जल्द से जल्द ज़ेरे इल्तवा कामों को पूरा करने और नए कामों को जल्द शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की। मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों के ताउन से बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेला पीर 8 अगस्त को ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल, मासाब टैंक, बंजारा हिल्स रोड में मुनक्किद होगा। इस जॉब मेले के औकात सुबह 8 ता 2 बजे दोपहर तक रहेंगे। 40 से ज्यादा कंपनीज व इदारे इसमें हिस्सा लेंगे। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और दीगर शोबों से वाबस्ता ग्रेजुएट्स, IIT डिप्लोमा होल्डर्स और दीगर रोजगार के मुतलाशी शिरकत कर सकते हैं। अहलियत व काबिलियत की बुनियाद पर स्पॉट तकर्रुरात किए जाएंगे। संगारेड्डी में 7 अगस्त को सब इंस्पेक्टर पुलिस की जायदादों पर भर्ती के लिए मुनक्किद होने वाले इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हुई हैं। जिले SP रमना कुमार ने बताया कि मज़कूरा इम्तिहानात के लिए 10 मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानात में 5,766 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि मज़कूरा इम्तिहानात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेंगे
उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी होगी। इन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल रहने की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद 1 मिनट की भी ताख़ीर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपने साथ इलेक्ट्रिक अशिया नहीं ले जा सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि इम्तिहानी मराकज़ के पास दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने सनाली मॉल पर धावा करते हुए हुक्का पार्लर को बेनकाब किया। पुलिस ने बताया कि मॉल के 3रे फ्लोर पर हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। इस धावे के दौरान बदरुद्दीन और शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों तालिब इल्म बताए गए। बदरुद्दीन पार्लर का मैनेजर है, जबकि शोएब पार्लर को फ्लेवर्स और दूसरा सामान सरबराह किया करता था। पुलिस ने उनके कब्जे से हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ फ्लेवर्स, पार्ट्स और 47,450 रुपए की नकद रकम भी जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदगान से मजीद पूछताछ जारी है। इस हुक्का पार्लर का मालिक मफरूर बताया गया है। तेलंगाना राइफल शूटिंग में शहर के एक शूटर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। हसन बिन तरीफ ने इससे पहले भी चेन्नई में हुए साउथ जोन राइफल मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीता था। गुलबर्गा कर्नाटक के मुतवत्तिन 25 साला नौजवान चांद पाशा वल महबूब साहब लापता हैं। वो खिलवत मस्जिद चमकुरा के करीब वाक़े अपनी एक बहन के यहाँ क़याम के लिए आए थे। 24 जुलाई को मल्लेपल्ली में वाक़े अपनी दूसरी बहन के पास जाने के इरादे से रवाना हुए, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। उनका फ़ोन भी बंद है। अगर किसी को नज़र आए तो हुसैनी आलम पुलिस को इत्तला दी जाए। हर साल की तरह इस साल भी पिस्ता हाउस की जानिब से मुहर्रम में पहली बार ज़ाफ़रान की स्पेशल दम के रोड ड्राई फ्रूट्स और असली घी में तैयार दस्तियाब हैं। 440 रुपये में आधा किलो के बॉक्स पिस्ता हाउस के तमाम ब्रांचेस पर दस्तियाब रहेंगे। इस साल प्रीमियम गिफ्ट पैक भी दस्तियाब रहेगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। नीति आयोग के इजलास का बाइकॉट। मोदी की भजन मंडली जरूरी अशिया और दीगर पर लगाए टैक्स बर्खास्त करें। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंद्रह अगस्त से नए आसरा वज़ाइफ की इजराई। डायलिसिस के मरीजों को भी वज़ाइफ, नए कार्ड्स जारी करने वज़ीर आला का ऐलान। मोदी के असल शागिर्द केसीआर। नीति आयोग का बाइकॉट खुफिया मुआहदा। नुकसानात से मुताल्लिक नुमाइंदगी जरूरी। रेवंत रेड्डी का रद्द अमल। और एबिट्स के एक मॉल में हुक्का पार्लर पर पुलिस का धावा। 2 अफराद गिरफ्तार, हुक्के का सामान और नकद रकम जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।